So we welcome you, sir. You can start your talk. थैंक यू मैम। ग्रैंड गाला डिनर का वक्त हो और उस समय साइंटिफिक सेशन चल रहा हो, बड़ा ही कष्टदायक समय है ये। थोड़ा देर और बियर कर लें हमारे साथ। मुझे टॉपिक दिया गया है कम्युनिटी चैलेंजेस ऑफ डाइवर्सिटी। द पार्ट ऑफ दैट ओबेसिटी हैज ऑलरेडी बीन कवर्ड बाय डॉक्टर आनंद शंकर इन द मॉर्निंग सेशन, सो आई विल बी बेसिकली फोकसिंग अपॉन द डायबिटीज पार्ट ऑफ इट, and whatever I am going to talk about is nothing new. It is all day in and day out experience by you all in your clinics. I will be just reiterating some of them to further strengthen that what should be done at the community level to combat this idea given data every alternate year that diabetes is rising in an exponential form every third year they give it. And we are helpless, we are not able to curb that epidemic. So what are the community challenges? Number one, what is community? एक समूह के रूप में संगठित स्थान विशेष के समस्त निवासी, एक डेफिनेशन ये है कि all the people who live in a particular place, area, etc. Second is a group of people who have something in common. So we as a doctor at an RSSDI forum, this is also community. RSSDI is also community of certain like-minded people talking for diabetes, working for diabetes, and making some guidelines for the diabetes. So there can be different types of communities with focus to some interest, some action, some place, some practice, circumstances. So number one, what we are doing at our level as a doctor in a community, that is one thing, and then what we can do for general population as another community, and what we can do for diabetic people as one community. So let us see. So what are the challenges of diversity? Number one is the resource challenge, some of which are basically government challenges, because those resources government can only manage. We as an individual, as a clinician, cannot manage it, and the others are our own challenges at our own clinical level, at our clinics. So there can be manpower challenge like doctor shortage, trained diabetes educators, nurses, clinics, hospitals, infrastructure at remote places to treat diabetes and educate people. And then there can be economic challenge at government level to set up all these resources, and at individual level, like at the doctor level, a doctor may not have sufficient finances to open up a well-established diabetes clinic, to spend money in a well-established diagnostic diabetic clinic. And then it can be at a patient level, he may not be able to afford BP machine or a glucometer or insulin or drugs. So that can be another economic challenge. So at the community level, disseminating evidence-based scientific knowledge and information to medical community, to general public, and to diabetic community. So at the medical community, we are successful. We are having so many organizations, bodies making recommendations, guidelines. Still we are talking about diabetes at RSSDI conference. So there we are meeting our challenges, but for the general public and diabetic community, we are failing. Can you recognize what is this? This is a statue of a female. Can anybody of you can tell which female statue is this? And this female is considered to be a symbol of beauty. आप में से किसी को इसमें खूबसूरती नजर नहीं आ रही होगी। ये स्टैचू जो है वीनस ऑफ विलेंडोर्फ, विलेंडोर्फ एक जगह जहाँ पर ये स्टैचू मिली थी, और ये वीनस की स्टैचू है। वीनस को सुंदरता की प्रतिमूर्ति माना जाता है। तो किसी जमाने में ओबेसिटी वाज सुंदरता की प्रतिमूर्ति। क्यों? क्योंकि फैमीन होता था, लोगों के पास खाने को नहीं होता था, तो जिसके पास शरीर में फैट है वो प्रॉस्परस है, ऑपुलेंट है, उसकी बड़ी इज्जत होती थी। तो ये लोग फिगर बनाते थे, खूबसूरती थी। एंड a little bit of tone was considered as a sign of prosperity. A person who is having a belly is prosperous, उसको अच्छा माना जाता है। लेकिन अब क्या है कि जब पेट हुआ, जब मटका, तो स्वाद को लगा झटका। अब कंसेप्ट ये हो गया है। तो हमें ये कंसेप्ट पब्लिक तक पहुंचाना है कि ये प्रॉस्पेरिटी का सिंबल नहीं है। दिस इज एन एपिसेंटर ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स। यहीं से सब कुछ शुरू होगा। NAFLD यहीं से शुरू होगा, यहीं से डायबिटीज शुरू होगा, यहीं से डिस्लिपिडीमिया शुरू होगा, सब कुछ यहीं से शुरू होना है। तो ये हमें कम्युनिकेट करना है, ये हमारा चैलेंज है कम्युनिटी लेवल पे।
And the biggest challenge is breaking various myths and beliefs deep rooted in the psyche of the people. हम सब अंग्रेजी दवा के डॉक्टर हैं, so called, we are modern medicine practitioners, लेकिन हमें समाज में अंग्रेजी दवा का डॉक्टर ही माना जाता है. Allopaths, one who treats antagonizing all the things. हम दबाने की दवा देते हैं, रोग को ठीक करने की दवा देते नहीं, हम रसायन देते हैं. ये जो बिलीफ है, जब पेशेंट से अंग्रेजी दवा की बात आती है तो प्रतिक्रिया ऐसी होती है, ना ना ना, जो भी है वो बाकी रेमेडी करा लो, अंग्रेजी दवा पे जैसे ही इमरजेंसी सिचुएशन खत्म हुई, इससे दूर हट जाओ, इसको बंद करो. ये कॉमन है. तो ये भी एक कम्युनिटी चैलेंज है, जिसकी वजह से डायबिटीज का पेशेंट आपका जो अच्छा वाला कंट्रोल है, आधी गोली में भी कंट्रोल है, तो सबसे पहले सोचता है कि अब 3 रिपोर्ट शुगर के नॉर्मल आ गए, लिपिड के नॉर्मल आ गए, तो कौन सी दवा पहले छोड़ें. तो ये एक हमारा बहुत बड़ा चैलेंज है डायबिटीज को मैनेज करने के लिए. और इंसुलिन तो बात ही क्या है, आप बात करिए तो यही प्रतिक्रिया होती है कि साहब सब कुछ कर लो, इंसुलिन मत देना मुझे. 100 साल हो गए इंसुलिन के, आज भी हम वहीं टिके हुए हैं कि इंसुलिन हम लिख नहीं पाते, लिखते हैं तो मरीज भाग खड़ा होता है. तो ये भी एक हमारा चैलेंज है. और हमें इस पर मनन करना होगा कि वाई वी फेल्ड इवन आफ्टर 100 years टू डिस्पेल सच मिसबिलीफ. क्या कारण है, कहाँ कमी है हमारे अंदर, क्यों हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे पेशेंट के साथ, पॉपुलेशन के साथ. 100 साल के बाद ही कहीं कुछ तो कमी हमारे अंदर ही होगी ना. दूसरा आदमी टीवी पे बैठ कर कन्विंस कर ले रहा अपनी पैथी के लिए, हम अपने एविडेंस बेस्ड मेडिसिन को भी नहीं कन्विंस करा पा रहे अपने पॉपुलेशन को. तो हमें इस कमी को देखना पड़ेगा. 2 स्टडीज मैं आपको करूंगा. एक ही है मेक्सिको सिटी की स्टडी है, चैलेंजेस टू डायबिटीज सेल्फ मैनेजमेंट फॉर अडल्ट्स विद टाइप 2 डायबिटीज इन लो रिसोर्स सेटिंग. और इन्होंने डिफरेंट फैक्टर्स पे कल्चरल बिलीफ, लैक ऑफ रिसोर्स, लाइफ स्टाइल चेंज, लैक ऑफ फैमिली सपोर्ट, मेंटल हेल्थ, क्लिनिक रिसोर्स, स्टाफ इनसेंसिटिविटी, पेशेंट एंगेजमेंट बैरियर्स, इन सब पे इन्होंने एनालाइज किया. 2 मोटे मोटे पॉइंट्स मैं आपके सामने रखूंगा. देखिए वहां, और ये ह्यूमन बिहेवियर वर्ल्ड वाइड एक ही है. आप इसमें जो कुछ उन्होंने इन्फ्लुएंस निकाला है, उसको लगेगा ये तो हमारे यहाँ की बात हो रही, हिंदुस्तान की, मेक्सिको की बातें नहीं हो रही. One adult with type 2 stated that too much medication makes you sick. The pills themselves turn into rocks in your kidney. हमारे भी कहते हैं अंग्रेजी दवा गुर्दा बैठा देती है, ये आंख का पर्दा खराब कर देती है. So if the doctor tells me to take 3 pills, I take 2. ये तो हमारे यहाँ भी यही कहानी है, ये यही चैलेंज हमारे यहाँ भी है. And one provider stated the patient often brings myths of or legends about insulin because of their personal experiences, because they have family members who have become blind or have lost some extremity. अब फैमिली में किसी को डायबिटिक रेटिनोपैथी एडवांस थी, उसको इंसुलिन जब प्रिस्क्राइब किया गया, उसका अचानक ब्लीड हो गया, विट्रियस हेमरेज हो गया, ब्लाइंडनेस हो गई, तो पूरे फैमिली ने ये मान लिया कि ये इंसुलिन से हुआ. एम्पुटेशन हो गया तो ये इंसुलिन से हुआ, क्योंकि इंसुलिन उसी समय लगाया गया. तो ये भी जो बिलीफ्स बैठते हैं, इसको हमें कैसे डिस्पेल करना, कैसे ब्रेक करना, बहुत बड़ा कम्युनिटी चैलेंज है. Adults with type 2 diabetes and providers also spoke about the use of herbs or other remedies used to lower blood glucose, heard about through family and friends. Example seeds, vegetables. तो हमारे यहाँ भी herbal therapy की सारी बातें होती है कि सब छोड़ दो, इसी पे चले जाओ. And one provider stated, in our culture we don't present to the health sector until we are sick. We do not have a culture of prevention. We go to the doctor when something already hurts us. And culturally we have been taught that the longer we tolerate pain or longer we tolerate symptoms, the stronger we are. तो यहाँ भी यही हाल है सब कुछ. दूसरा स्टडी है PLOS-1 का, बैरियर्स एंड फैसिलिटेटर्स फॉर टाइप 2 डायबिटिक मैनेजमेंट इन साउथ एशियन. तो इसमें इंडिया भी आ जाता है. इसके 2 सेलेक्ट फीचर्स मैं आपके सामने हाईलाइट करूंगा. लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन डिस्कॉर्डेंस विद द हेल्थ केयर प्रोवाइडर वाज अ सिग्निफिकेंट बैरियर टू रिसीविंग एंड अंडरस्टैंडिंग डायबिटीज एजुकेशन. तो आप जिस भाषा में बात कर रहे हैं मरीज से, अगर उसकी भाषा नहीं है, आप अपनी भाषा में बात करेंगे मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, तो उसकी समझ में बात नहीं आएगी. तो ये सबसे बड़ा बैरियर ये भी है. तो हमें पेशेंट के लेवल पर उतर के बात करना पड़ेगा. और दूसरा प्रेफरेंस फॉर फॉक एंड फाइटोथेरेपी, ये वर्ल्ड वाइड है. फाइटोथेरेपी के प्रति एक आकर्षण, फैमिली मेडिसिन से जो चला रहा है उसके प्रति एक आकर्षण, ये वर्ल्ड वाइड है. इसको हमें कैसे तोड़ना है, बिना पेशेंट से लड़े, बिना पेशेंट को क्रिटिसाइज किए, बिना पेशेंट को एंटागोनाइज किए. क्योंकि आप जब लड़ने की मुद्रा में आते हैं तो फिर उधर से भी वही प्रतिक्रिया होने लगती है. फिर वो सोचता है कि हम जीत जाए, डॉक्टर साहब को किसी तरह से अपनी बात से कन्विंस करना. हमें उसमें नहीं फंसना है. तो ये भी वो पिछली स्टडी से है कि वन अडल्ट विद टाइप 2 स्टेटेड ही मींस डॉक्टर टेल्स मी आई डोंट ट्राई. ये है प्रोवाइडर्स की सेंसिटिविटी. कि आप पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, आपके शब्दों की बड़ी अहमियत होती है. कि ही टेल्स मी दैट आई डोंट ट्राई, तो आप एक्यूज मत करो पेशेंट को.
that I don't want to control my sugar. कौन नहीं चाहता? Another stated, sometimes I don't like it. I know I'm going to die, but he is rude sometimes. I don't like that. I get very depressed. मैं गोरखपुर में डायबिटिक हेल्थ केयर एक एसोसिएशन डायबिटिक पेशेंट्स का मैंने फॉर्म कर रखा है, उसमें से एक बंदा जो है वो मेरा रिलेटिव था, उसने आना बंद कर दिया। मैंने पूछा क्यों नहीं आते हो? उसने कहा कि आप इतनी डरावनी बातें कभी कभी कर देते कि गुर्दा बैठ जाएगा, आँख खराब हो जाएगी, मैं 2 दिन तक सो नहीं पाता हूँ। तो कई बार आप जो चीजें बताना भी चाहते हैं तो कई बार कुछ पेशेंट्स उससे डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो दिस इज ऑल्सो वेरी बिग चैलेंज, हाउ टू कम्युनिकेट योर नॉलेज। तो और फिर चमत्कार तो हर जगह नमस्कार है पूरे विश्व में। कोई अगर ये बता दे कि जड़ से समाप्त हो जाएगा तो आपकी सारी एविडेंस बेस्ड मेडिसिन धरी की धरी रह जाएगी, आदमी वहीं जाएगा जहां चमत्कार है। और चमत्कारी बाबा हर जगह बैठे हैं, जड़ से इलाज हर जगह हो रहा है, हम उनसे लड़ नहीं पा रहे। हमारे पास सारे एविडेंस हैं, लेकिन वो चमत्कार के भरोसे अपना दुकान चला रहे हैं। 3 महीने में जड़ से समाप्त हो सकती है डायबिटीज, है ना। शुगर को जड़ से खत्म करने का आसान उपाय, 3 चीजें शुगर को जड़ से खत्म कर देंगी। ये जो जड़ से खत्म करने का सिलसिला है, इसके प्रति हम अपने एविडेंस को पुटअप नहीं कर पा रहे, कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे। ये बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए। मुझे लगता है अगर हम इस चैलेंज को मीट आउट कर रहे जाए किसी भी तरीके से, तो हाफ द वर्क विल बी डन। हम 100 साल इंसुलिन मना रहे हैं, वहां इंसुलिन छुड़ाने वाले बैठे हुए हैं, रोटी ले आए हैं, कोई घरेलू उपाय बता रहा है, किसी ने पेड़ का नाम ही रख दिया इंसुलिन पौधा, कि लो इंसुलिन का पौधा आ गया, अब इसकी पत्तियां खाओ। अब इसका तोड़ कैसे निकालेंगे आप? अब पेशेंट इसकी तरफ जाएगा ही जाएगा, क्योंकि सुबह 4 से 7 हर टीवी चैनल पे यही चलता है। तो हमें इससे भी किसी तरीके से इस चैलेंज को भी मीट आउट करना है। तो पीपल ऑफ ग्रेट फेथ एंड रिस्पेक्ट इन देयर ट्रेडिशनल वैल्यूज एंड प्रायोरिटाइज इन फोक रेमेडीज, वी विल हैव टू रिस्पॉन्ड, नॉट टू रिएक्ट विद दिस चैलेंज। हमें लड़ना नहीं है उससे, हमें रिस्पॉन्ड करना है। हमें अपने ट्रेडिशनल लिटरेचर को ही यूज करना है उनकी काट के लिए, and to break deep-rooted belief infused and instilled right from Dr. Henneman to modern day cure, claimers that Angrezi medicines are mere chemicals, they only suppress the disease and harm different organs and even create new disease. तो हमें बताना है कि modern medicine is just an extension of the traditional medicine. आप crude herb यूज करते थे, modern medicine एक्टिव ingredient निकाला, एनालाइज किया और फार्माकोथेरेपी में उसको सब कुछ करने के बाद तब आपको एविडेंस बेस्ड एक डोज दिया है। So it is an extension of traditional medicine. It is not nothing new. And insensitive and ineffective communication is also a big challenge. तो हमें इसके ऊपर काम करना है कि हमको इस कम्युनिकेशन बैरियर को भी ब्रेक करना है। पेशेंट के साथ, कम्युनिटी के साथ हमको प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है। तो की इज इफेक्टिव एंड पर्पसफुल कम्युनिकेशन। So talk and talk, break this barrier of non communication and सही अवसर, सही वक्त और सही पकड़ और सही संवाद, अगर हम ये सीख जाएं तो काफी कुछ ये कम्युनिटी बैरियर को हम ब्रेक कर ले जाएंगे पेशेंट्स के साथ और पॉपुलेशन के साथ। तो हम डिफरेंट लेवल्स पे काम कर सकते हैं, फैमिली लेवल पे, सोसाइटी लेवल पे, स्कूल लेवल पे। बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा। हम टास्क फोर्स बना सकते हैं, स्कूल में जा सकते हैं, बच्चों के साथ बात कर सकते हैं, कॉलेजेस में जा सकते हैं, रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट को प्रेस कर सकते हैं, स्कूल की टाइमिंग चेंज करिए, अर्ली मॉर्निंग के बजाय आप थोड़ा लेट 10 बजे से स्कूल लगाइए। बच्चा सुबह 5 बजे उठ जाता है, सुबह भी प्रॉपर उसका भोजन नहीं होता, दोपहर को खेलता नहीं है। मेकिंग पीटी स्पोर्ट्स अटेंडेंस मैंडेटरी टू पास हायर ग्रेड्स, ताकि फिजिकल एक्टिविटी स्कूल में हो। आजकल स्कूल में वो भी बंद हो चुका है। डिफरेंट तो अरेंजिंग पोस्टर, स्लोगन कॉम्पिटिशन आफ्टर द लेक्चर एट अ गैप ऑफ वीक और 10 डेज। मैं क्या करता हूँ, मैं स्कूल में जाता हूँ, पेशेंट्स को उनका जो प्रेयर टाइम होता है वो उनके स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन में मांगता हूँ। 15 मिनट में मैं उनको समस्या समझाता हूँ, बताता हूँ कि उनसे बात करने आया हूँ कि आज से 30 साल बाद जो डायबिटीज का आंकड़ा दिया जा रहा है, 30 साल बाद तुम्ही में से वो आंकड़े आकर के लोग पूरे करेंगे। तो अगर तुम आज नहीं चेतोगे तो 30 साल बाद वाला आंकड़ा तुम्हारी पेट से पूरा होगा, मैं तो हो सकता तब तक ऊपर निकल जाऊँ। तो अब इस उनको सारा डिटेल देने को आप कहता हूँ, 1 हफ्ते जाओ घर पे, माता पिता भाई से सबसे बातचीत करो, नेट पे जाओ, सर्च करो, फिर एक पोस्टर कॉम्पिटिशन होगा, जो सबसे बढ़िया 3 पोस्टर बनाएगा और जो सबसे अच्छे स्लोगन लिखेगा उसको इनाम देंगे। तो 1 हफ्ते के लिए जब अपने घर जाता है, माँ बाप से, भाई बहन से बात करता है, नेट पे जाता है, तो पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है। लेकिन पोस्टर उसको स्कूल में ही आके बनाना है, डिस्कस करो 1 हफ्ते तक, फिर उसके बाद हम उससे ये गैदरिंग के साथ में इस तरह से कम्युनिकेट करता हूँ। ये पब्लिक एजुकेशन प्रोग्राम है। ये नीचे आप देख रहे हैं पोस्टर्स बच्चों ने बना रखे हैं, उनको इनाम देते हैं फिर। और या फिर लॉन्ग टर्म RSSDI ने लखनऊ के पास में 2 गांव अडॉप्ट कर रखे हैं पिछले 4 साल से, वहाँ रेगुलर जा रहे हैं
हर दूसरे महीने में जाते, डॉक्टर अनुज महेश्वरी यहाँ होते तो और डिटेल में बताते, और रेगुलर वहाँ पर पब्लिक को एजुकेट कर रहे हैं। तो इस तरह की एक्टिविटीज से हम इस सामाजिक चैलेंजेस को, कम्युनिटी चैलेंजेस को मीट आउट कर पाएंगे और डायबिटीज के इस एपिडेमिक को रोक पाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच।